اور میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم 15ویں آیت تک پڑھیں گے۔ بک آف ایکسوڈس ورس 10 to 15 ہم پڑھیں گے، اور یوں یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا، اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا، جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے، مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لاکلام سنسار کیا جائے یا تیر سے چھیدا جائے، خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے۔ اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں۔ تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا، اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا، اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا۔ آمین۔ اور آج ہم جو سٹڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں بڑی ڈیپلی اسٹڈی ہے، سینکٹیفیکیشن۔ سینکٹیفیکیشن جس کا مطلب ہے پاک ہونا، مقدس ہونا، پاکیزگی، پاک ہونے کا عمل۔ اور آج ہم سینکٹیفیکیشن پر جو ہیں وہ بائبل اسٹڈی کو حاصل کریں گے، اور آج اس کو نئے ایک اینگل سے میں آپ کو بیان کروں گا کہ سینکٹیفیکیشن جو ہے، سینکٹیفائی، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کو پیوریفائی بھی کہتے ہیں، پیور ہونا، اور اس کو کانسیکریٹ بھی کہتے ہیں۔ کانسیکریٹ کا مطلب بھی پاک ہونا۔ جب ہم نے یہ حوالہ پڑھا کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہے کہ اپنے آپ کو پاک کریں اور اپنے کپڑے دھو لیں، اور تیسرے دن میں کوہ سینا پر کیا کروں گا، اتروں گا۔ یعنی بنی اسرائیل قوم کو کہا گیا کہ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے، میرے نزدیک آنا ہے، میرے پاس آنا ہے، تو اپنے آپ کو کیا کر لو، پاک کر لو۔ اور دن کون سا بتایا؟ آج سے 3 دن کے بعد، یعنی کہ آج سے تیسرے دن میں کوہ سینا پر اتروں گا۔ تو تیسرے دن یعنی 2 دن ان کو پاک ہونے کے لیے دیے گئے، چونکہ وہ بہت بڑی تعداد تھی، اور ان کو پاک ہونے کے لیے 1 دن جو تھا وہ درکار نہیں تھا، یعنی 1 دن میں وہ پاک نہیں ہو سکتے تھے۔ تو خدا نے ان کو کتنے دن دیے؟ 2 دن مکمل، کہ تم پاک ہو اور اپنے کپڑے کیا کر لو، دھو لو، اور تیسرے دن میں کوہ سینا پر اتروں گا۔ خدا نے گویا ان کو کہہ دیا کہ اگر تم پاک ہوگے تو میرے پاس تم کیا کر سکتے ہو، آ سکتے، ادروائز نہیں۔
ہمارا خدا جو ہے وہ پاکیزگی کا خدا ہے، وہ پاک ہے، وہ قدوس ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم یسایہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، یسایہ نے رویا میں دیکھا خدا کے تخت کو، خدا تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور سرافیم اس کی حضوری میں کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ قدوس قدوس قدوس۔ یہ اس کی پاکیزگی کا اعلان کر رہے ہیں، یہ اس کی قدوسیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ پاک ہے، وہ قدوس ہے، وہ ہولی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ فرشتگان سرافیم 6 پروں والے خدا کی حضوری میں ہولینس کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں بلند آوازوں کے ساتھ، اور لکھا ہے بغیر تھکے دن رات۔ سرافیم 6 پر والے ہوتے ہیں، 2 پروں سے وہ اپنے منہ کو ڈھانپتے ہیں، 2 پروں سے وہ اڑتے ہیں اور 2 پروں سے اپنے پاؤں کو ڈھانپتے ہیں خدا کی حضوری میں۔ اپنے منہ کو اس لیے ڈھانپتے ہیں کہ وہ اتنی پاک ہستی ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، پاک خدا۔ اور اس لیے وہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے تئیں پاک کرو، اپنے کپڑوں کو دھو، اور تیسرے دن کوہ سینا پر میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ ملاقات کروں گا، تم میرے پاس آ جانا۔ اور یہاں پر ایک حد بندی ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی ایک کوہ سینا کے حد ٹھہرا دی گئی کہ اس کے آگے نہیں جانا، اس لیے کہ ابھی وہ اتنے پاک نہیں تھے، ابھی ان کی پاکیزگی کا لیول وہ نہیں تھا کہ وہ خدا کے پہاڑ کو چھو بھی سکتے، ابھی ان کی زندگیوں میں گناہ تھے، جس کی وجہ سے خدا نے روکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کیا ہو؟ ہلاک ہو جائے۔ جانور کو بھی الاؤ نہیں کیا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ یہ حد ہے، اس کے آگے تم نے نہیں جانا۔ اور ان کو کیا کہا گیا؟ اپنے آپ کو پاک کرو اور اپنے کپڑے دھو لو۔ یہاں پر جو ان کو پاکیزگی کا کہا گیا، یہ جسمانی پاکیزگی کے تعلق سے ان کو تعلیم دی گئی، ان کو حکم دیا گیا۔ جسمانی پاکیزگی کیا؟ یعنی کہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا مطلب تھا نہاؤ، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو یعنی اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے۔ تو اپنی باڈی کو صاف کرنا کا مطلب کیا ہے؟ کہ پاک کرنا، جو یہاں پر خدا نے ان کو حکم دی۔ اور ایک اپنے کپڑوں کو دھو لو۔ تو یہاں پر ایک پاکیزگی کا ہمیں بڑا گہرا مکاشفہ ملتا ہے، جو آج میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کی تعلیم دینے جا رہا ہوں کہ کیا پاکیزگی خدا چاہتا ہے۔ ابھی بنی اسرائیل کا وہ لیول نہیں ہے کہ خدا ان کو گہری باتیں جو ہے پاکیزگی کے تعلق سے سکھائے۔ ابھی یہ بچے ہیں، گو عمر میں بہت زیادہ ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، لیکن خدا کی پاکیزگی سے ابھی ناواقف ہے۔ تو خدا نے موسیٰ کو کہا کہ بنی اسرائیل کو کہہ کہ یہ اپنے آپ کو کیا کریں؟ پاک کریں اور اپنے کپڑے دھو لیں۔ اور پاک یا پاکیزگی یا سینٹیفیکیشن جو ہے، یہ 2 فولڈ سینٹیفیکیشن ہے۔ کتنے فولڈ ہے؟ 2 فولڈ، جس کا مطلب ہے کہ 2 طرح کی پاکیزگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ بائبل ہمیں 2 طرح کی پاکیزگی جو ہے وہ بتاتی ہے۔
इसको टू फोल्ड सैंटिफिकेशन कहते हैं। दो तरह की पाकीज़गी, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। एक क्या है? आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है। एक बैरूनी पाकीज़गी है और एक अंदरूनी पाकीज़गी। आउटवर्ड का मतलब है जिस्मानी पाकीज़गी और इनवर्ड का मतलब है बातनी पाकीज़गी, दिल की पाकीज़गी। तो खुदा उनको जो है वो आउटवर्ड पाकीज़गी के ताल्लुक से अभी यहां पर क्या दे रहा है? हुक्म दे रहा है। बैरूनी जिस्मानी पाकीज़गी के ताल्लुक से कि तुम अपने आप को पाक करो, यानी तुम अपने आप को धोवो, अपने आप को वॉश करो, अपने जिस्म को भी करो और अपने कपड़ों को भी करो। तो खुदा उनसे अभी बातनी पाकीज़गी की तालीम उनको नहीं दे रहा, या बातनी पाकीज़गी का हुक्म उनको नहीं दे रहा। किस सैंटिफिकेशन का कह रहा है? आउटवर्ड, बैरूनी, जिस्मानी। लेकिन इस बैरूनी जिस्मानी पाकीज़गी को देने का हुक्म जो था, खुदा का यह मकसद था कि खुदा उनको जिस्मानी पाकीज़गी के जरिए बातनी पाकीज़गी सिखाना चाहता था कि जैसे वो अपने बदनों को धोते हैं, जैसे वो अपने कपड़ों को धोते हैं, वैसे ही वो अपने गुनाहों को भी धोएं। और हम जब देखते हैं अहबार की किताब, तो अहबार की किताब जो है, बुक ऑफ लेविटिकस जो है, ये लावियों की किताब है। इसमें पाकीज़गी के, सैंटिफिकेशन के जो है वो हुक्म, तरीके बताए गए हैं। और तरीके क्या है कि गुनहगार को कैसे पाक होना है, कोड़ियों को कैसे पाक होना है, नापाक घरों को कैसे पाक होना। और वहां पर बताया गया कि कौन सी चीजें पाक है, कौन सी चीजें नापाक है, कौन से खाने पाक हैं, कौन से खाने नापाक हैं, कौन से जानवर पाक हैं, कौन से जानवर नापाक हैं, कौन से परिंदे पाक हैं, कौन से परिंदे नापाक हैं, कौन से कीड़े पाक हैं, कौन से कीड़े नापाक हैं। और वहां पर जब गुनाह सरजद होता तो अमल बताए गए हैं कि एक शख्स से जुर्म हो जाए, एक शख्स से गुनाह हो जाए, एक शख्स से खता हो जाए, तो उसको किस तरह, किस अमल के जरिए से क्या करना है? अपने आप को पाक करना है। कौन सी कुर्बानियां चढ़ानी है, किन पानियों से अपने आप को पाक करना है। तो बनी इस्राएल को हुक्म दिया गया था, काहिनों को हुक्म दिया गया था कि वो सुर्ख बछिया की राख को पानी में मिलाकर लोगों के गुनाहों को क्या करें? धो दें। वो स्प्रिंकल करते थे उस राख के, सुर्ख बछिया, रेड हेफर के जो राख थी उसको पानी में मिलाते थे और उससे जो थे वो छिड़कते थे, और बनी इस्राएल अपने गुनाहों से क्या होती थी? पाक होती। और कोड़ियों के लिए 2 कबूतर लिए जाते थे, जूफा लिया जाता था, एक प्याला लिया जाता था, और दरिया के पानी के ऊपर जो था वो उसके कोड़ को क्या किया जाता था? उसको पाक ठहराया जाता था जब वो ठीक हो जाता था। तो वो भी एक परिंदे को काटते थे, उसके खून को बोल में डालते थे और दूसरे को उसमें डिप कर छोड़ देते थे, और जूफे के साथ उस पर 7 टाइम क्या करते थे? छिड़काव करते थे। तो ये इस तरह जो था वो पाक करते थे। बनी इस्राएल पाक होती थी। किसी से गुनाह सरजद होता वो पाक इस तरह करते थे, कोई कोड़ी होता वो इस तरह पाक करते थे, कोई मकान फफूंदी लग जाती थी, मकानों के अंदर कोड़ लग जाता था, तो फिर काहिन उसको चेक करता था। अगर काहिन चेक करके ये डिलीवर कर देता था, ये अनाउंस कर देता था कि ये घर जो है नापाक है, तो फिर उसको पाक करने का एक प्रोसेस। तो खुदा जो है वो पाकीज़गी को चाहता है। इंसान के अंदर वो पाकीज़गी को चाहता है। वो चाहता है कि उसकी हजूरी में हर एक चीज जो है वो क्या हो? पाक हो, नापाक नहीं। क्योंकि वो क्या है? वो खुद पाक है।
उसमें कोई तारीकी नहीं, उसमें कोई गुनाह नहीं, उसमें कोई नापाकी नहीं है। इसलिए बाइबल में बार बार वो कहता है, एहबार की किताब में, शरीयत में, मेरी मानिद बनो जिस तरह मैं पाक हूं। और याद रखें, जो पाक होंगे वही उसकी हजूरी में आएंगे, जो पाक होंगे वही उसकी हजूरी में खड़े होकर इबादत कर सकते हैं, नापाक नहीं कर सकते। यहां पर आप जो खुदा के फजल से आज बैठे हुए हैं, उसके कलाम को सुन रहे हैं, यह इसलिए है कि आप पाक हैं, आपको उसने पाक किया है। और नापाक खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे, खुदा उनको आउट कर देता है। और खुदा ने बनी इसराइल को कहा कि तुम अपने आप को पाक करो, यानी अपने बदन को जो हो वो पानी से वॉश करो, कपड़ों को वॉश करो, और तीसरे दिन मैं कोहे सीना पर उतरूंगा। और यहां पर जो बात आई है पाकीज़गी की, पाक करना, कि अपने आप को पाक करो, ये पाक करना सैंक्टिफिकेशन है, ये होलीनेस नहीं है, ये याद रखना है। ये सैंक्टिफाई है, ये होली नहीं है। होली लफ्ज का भी मैं मीनिंग बताऊंगा, और सैंक्टिफाई का, सैंक्टिफिकेशन का जो डीपली उसके मीनिंग है वो भी बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि सैंक्टिफाई या सैंक्टिफिकेशन और होली, इनमें क्या जो है वो फर्क है। उर्दू में हमारे पास एक ही वर्ड आता है, पाक। उर्दू में क्या है? पाक। होली का मतलब भी पाक है, और सैंक्टिफिकेशन का मतलब भी क्या है? पाक है। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं डीपली, तो उससे हमें पता चलता है कि इनमें क्या क्या फर्क है। और एक लफ्ज है, क्या मैंने बताया, जो यहां पर इस्तेमाल हुआ है, सैंक्टिफिकेशन। इब्रानी में, हिब्रू में इसको कहते हैं कादाश, जिसका मतलब है सैंक्टिफाई। इसका एक मतलब है टू कॉन्सिक्रिएट, इसका एक मतलब है प्रिपेयर, इसका मतलब है डेडिकेट। डेडिकेट। सैंक्टिफाई का भी मतलब क्या करना है? पाक करना है। कॉन्सिक्रिएट का भी क्या मतलब है? पाक करना है। प्रिपेयर का मतलब है अपने आप को तैयार करना। पाक करना और क्या करना? तैयार करना। और अपने आप को डेडिकेट का मतलब है कि मखसूस करना अपने आप को। तो कदाश, सैंक्टिफाई, पाक करना, इसका मतलब होली नहीं है। इसका मतलब क्या है? सैंक्टिफाई, कॉन्सिक्रिएट, प्रिपेयर। यानी खुदा ने जब उनको कहा कि पाक, अपने आप को पाक करो, तो इसका मतलब है खुदा ने उनको कहा कि अपने आप को पाक साफ करके, अपने आप को वॉश करके मेरे लिए क्या करो? मेरे लिए तैयार करो, मेरे लिए तैयार करो, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है। और डेडिकेट, मखसूस करना। जो भी चीज आप खुदा के लिए मखसूस कर देते हैं, वो सैंक्टिफाई हो जाती है, वो पाक हो जाती है। और जो दूसरा लफ्ज है, पहला लफ्ज क्या था? कादाश, जिसका मतलब सैंक्टिफाई, पाक करना। दूसरा इब्रानी का लफ्ज क्या है? कादोश। क्या है? कादोश। कादोश का मतलब है होली, सैक्रेड, जिसका मतलब क्या है? कद्दूस। और क्या है? पाक। खुदा के लिए क्या लफ्ज आया है? खुदा के लिए कादोश वर्ड आया। कादोश का मतलब है कि आसमानों पर फरिश्ते उसको कहते रहते हैं, कद्दूस, कद्दूस, कद्दूस। तो कद्दूस का मतलब है 3 मर्तबा कद्दूस, कद्दूस, कद्दूस। बाप भी पाक है,
बेटा भी पाक है और पाक रूह भी पाक है। कद्दूस, कद्दूस, पाक, तू पाक है, तू कद्दूस है, तू कद्दूस है। तो इब्रानी का लफ्ज जो पाकीज़गी के लिए आया है, जो होलीनेस के लिए आया है, होली के लिए, वो क्या है? कद्दूस, जिसका क्या मतलब है? पाक, जिसका क्या मतलब है? कद्दूस। खुदा कद्दूस है। बार बार बाइबल मुकद्दस में आया है कि वो कद्दूस है। हम पढ़ेंगे, खरूज की किताब में पढ़ेंगे, वो क्या है? वो कद्दूस। हम बुक ऑफ रेवलेशन में पढ़ेंगे, मुकाशफा की किताब में, कि वो क्या है? कद्दूस। वो ही कद्दूस है। कद्दूस लफ्ज किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। और पहला मैंने आपको लफ्ज बताया कादाश, जिसका मतलब है सैंक्टिफाई, सैंक्टिफिकेशन, जिसका मतलब है प्रिपेयर करना। यानी सैंक्टिफिकेशन जो हमने अभी पढ़ा खरूज 19वें बाब में, कि अपने आप को पाक करना, उसका मतलब है कि पाक करना या सैंक्टिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिया से एक इंसान जो है अपने आप को खुदा के लिए तैयार करता है, पाक करता है। एक प्रोसेस है, एक अमल है। जैसे उनको बताया गया अपने आप को पाक करो, तो पाक करने का क्या अमल था? कि अपने आप को पानी से वॉश करो, अपने कपड़ों को धो, फिर तुम जो हो वो आउटवर्ड जो हो वो बैरूनी तौर पर क्या करोगे? मेरे लिए अपने आप को पाक करोगे। इनवर्ड नहीं, बातनी तौर पर नहीं, लेकिन इन सारी जिस्मानी पाकीज़गी से खुदा उनको बातनी पाकीज़गी सिखाना चाहता था। खैमा इज्तिमा के और हैकल के जितने खुदा ने इबादत थी, जितनी कुर्बानियां थी, जितनी जो पाकीज़गी करने के लिए अमल थे, वो इंसान को, बनी इसराइल को सिखाने के लिए थे। ये सारे जिस्मानी तौर पर थे, ये सारे जिस्मानी तौर पर थे। और बनी इसराइल को इनके जरिया से सिखाना था कि वो अपनी बातनी पाकीज़गी को भी जो है वो देखें। सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि बातनी पाकीज़गी, रूहानी पाकीज़गी। जिस्मानी पाकीज़गी खुदा के नजदीक कोई मायने नहीं रखती, लेकिन खुदा ने उनको, चूंकि अभी वो न्यू थे, उनको पता नहीं था, उनको सिखाने के लिए खुदा ने उनको क्या किया? ये तरीका दी। सैंक्टिफिकेशन का दाश एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वसीला से बनी इसराइल को कहा गया कि वो अपने आप को क्या करें? जिस्मानी तौर पर पाक करें। अमल है, कादोश है। कादोश प्रोसेस नहीं है, ये है ही पाक। ये खुदा के लिए यूज हो और ये इंसान के लिए भी आता है। और हम अहबार की किताब उसके 11वें बाब उसके 44वीं आयत में पढ़ते हैं, मैं खुदावन तेरा खुदा हूं, इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं पाक हूं। और ये बात जो है ये बार बार अहबार की किताब में 20वें चैप्टर में भी पढ़ेंगे और मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ेंगे। मेरी मानित बनो जिस तरह मैं पाक हूं, मेरी मानित बनो जिस तरह मैं पाक हूं। इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, या मुकद्दस होना और पाक करना। तो यहां पर हमें दोनों मीनिंग्स का, दोनों जो है पाकीज़गी का, दोनों पाक होने का जो है मतलब इजीली मिल जाता है। खुदा पाक है और वो चाहता है कि उसकी मानित पाक बना जाए। जब खुदा कहता है कि मैं पाक हूं, तो इसका मतलब है खुदा होली है, खुदा कद्दूस। और जब वो कहता है कि मेरी मानित पाक बनो, तो इसका मतलब भी यही है कि मेरी मानित होली बनो। मेरी मानित होली, मेरी मानित पाक बनो। जिस तरह मैं होली हूं,
तुम भी पाक बनो, तुम भी होली बनो। तो यहां पर जब खुदा ने कहा अहबार की किताब में कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, यानी मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं, इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करना, तुम मुकद्दस होना और पाक करना। यहां पर एक वर्ड है मुकद्दस और एक वर्ड है पाक। एक वर्ड मुकद्दस जो है इसका मतलब है सैंक्टिफाई करना, पाक करना, सैंटिफिकेशन। मुकद्दस का यहां पर इब्रानी में जो मतलब आया है वो क्या है? कादाश, अपने आप को पाक करना, अपने आप को मुकद्दस करना। किसके लिए? मेरे लिए। और आगे क्या है? पाक करना, क्योंकि मैं पाक हूं। मुकद्दस और पाक यानी सैंटिफाई अपने आप को करना, और साथ में है होली होना, क्योंकि मैं पाक हूं, मैं होली हूं। इसका मतलब यहां पर हम यूं निकालते हैं, या इस तरह से बाइबल हमें इसका मतलब बताती है कि मुकद्दस होना और पाक होना, यानी जो कोई सैंटिफिकेशन के अमल से गुजरेगा वही होली होगा। जो कोई सैंटिफिकेशन के अमल से, जो कोई अपने आप को पाक करेगा, जैसे यहां पर बनी इस्राएल को कहा गया कि तुम अपने आप को पाक करना, यानी तुम नहाना धोना और अपने आप को पाक करना, फिर तुम क्या होगे? होली होगे। तो यहां पर इसका मतलब यह मिलता है कि मुकद्दस करना और पाक करना, यानी सैंटिफिकेशन के जरिए से अगर तुम आओगे, सैंटिफाई तुम अपने आप को करोगे, वो अमल, वो प्रोसेस जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसके जरिए से मेरे पास आओगे, तो तुम क्या होगे? पाक होगे। क्या होगे? होली होगे। हमने आसमानों पर जाना है और आसमानों पर कद्दूस खुदा मौजूद है। आसमान पर, आलम बाला पर, न्यू यरूशलेम में वही जाएगा जो होली होगा। यहां पर जो यहां पर होली होगा, जो सैंटिफिकेशन के अमल से गुजरा होगा और पाक हुआ होगा, जिसने अपने आप को मुकद्दस किया होगा और पाक होगा यानी होली होगा, वही खुदा की हजूरी में। यहां तो जो है वो कोहे सीना है, वहां पर आसमानी जो है वो सयून का पहाड़ है जिसके पास हम जाएंगे। और हम जब पैदाइश की किताब पढ़ते हैं, पैदाइश 35वें बाब, तो सैंटिफिकेशन के अमल के ताल्लुक से याकूब जानता था। यहां तो बनी इस्राएल को, उसकी औलाद को बताया गया, लेकिन याकूब क्या था? याकूब के ऊपर यह मुकाशफा था, वो जानता था। जब वो हरान में गया अपने मामू लाबन के पास और वापस आ रहा था, सिक्कम में आया, खुदा ने कहा तू बैत एल को जा अपने खानदान को लेकर। सिक्कम में ठहरा था और आप जानते हैं जब वो अपने मामू के घर भागा अपने भाई इसौ से बचने के लिए, मामू के घर में गया तो रास्ते में वो लोज के मुकाम पर ठहरा और उसका नाम उसने चेंज करके क्या रखा? बैत एल। और उसने सीढ़ी देखी, एक ऐसी सीढ़ी जिस पर फरिश्ते ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, तो बियाबान था, घुप अंधेरा था। तो वो उठा और उसने कहा बेशक खुदावंद यहां पर मौजूद है। और उसने एक पत्थर लिया, उस पर तेल उंडेला और उसका नाम क्या रखा? बैत एल। उसने कसम खाई खुदा की हुजूरी, अगर इस सारे सफर में जो मैं जा रहा हूं अपने मामू के घर में, तू मेरे साथ हो, मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, किसी चीज की कमी ना होने दे, तो मैं फिर इस जगह पर वापस आऊंगा और कुर्बानी चढ़ाऊंगा, दयाकी दूंगा तेरी हजूरी में। तो वो चला गया, लेकिन वापस जब आया तो वो सिक्कम में चला गया। तो खुदा ने उसको कहा कि तूने बैत एल को जाना है। तो खुदा ने जब उसको कहा तो उसने अपने सारे घराने, अपने सारे साथियों को जमा किया और अब वो क्या करने जा रहा है? वो सैंक्टिफाई अपने आप को करने जा रहा है, वो अपने आप को पाक करने जा रहा है।
क्योंकि उसने बैत एल को जाना है। बैत एल का मतलब है, बैत का मतलब है घर और एल का मतलब है खुदा, एलोहीम। तो बैत एल का क्या मतलब है? खुदा का घर। तो उसने कहा मुझे बैत एल को जाना है, मुझे खुदा के घर जाना है, इसलिए तुम तमाम उन बुतों को, गैर मबूदों के बुतों को जो तुम्हारे दरमियान में हैं, उनको दूर करो, तहारत करो और अपने कपड़े धो लो, क्योंकि मुझे बैत एल को जाना है। आओ हम बैत एल को जाएं और मुझे वहां पर खुदा के लिए एक मज़बा बनाना है। तो उसको पता था कि नापाक शख्स खुदा का मज़बा नहीं बना सकता, नापाक शख्स खुदा के घर में नहीं जा सकता। इसलिए उसने उन तमाम बुतों को, याकूब का घराना था लेकिन उसमें भी जाहिर बात है हरान से आए थे, बुत गैर मबूदों के भी मौजूद थे, उसको पता था। उसने अपने साथियों से, अपने घराने के लोगों से, नौकरों से, चाकरों से कहा कि फेंको उनको सब बुतों को, तहारत करो। तहारत का मतलब है पाक करना, नहाना, पानियों से धोना अपने आप को और कपड़ों को वॉश करना। और उसने कहा तहारत करो और आओ हम खुदा के हजूरी में चल। तो वो जानता था कि पाकीज़गी के बगैर, सैंक्टिफिकेशन के बगैर वो खुदा की हजूरी में नहीं जा सकता। और ये सैंक्टिफिकेशन भी ये बातनी नहीं थी, ये क्या थी? ये जिस्मानी थी। जो वो कह रहा अपने आप को धो लेना। आज भी कलीसियाओं के अंदर लोग जिस्मानी पाकीज़गी को फोकस करते हैं, लेकिन खुदा जो है इंसान के दिल की पाकीज़गी को देखता है। सैमुअल से भी ये बात की कि खुदा इंसान नहीं जो इंसान की बैरूनी हालत पर नजर करता है। सैमुअल से कहा, जब वो दाऊद को मसा कर रहा था, उस खुदा ने उसको कहा कि खुदा इंसान नहीं जो बैरूनी हालत पर नजर करता है, खुदा इंसान के दिल को देखता है, इंसान के दिल की पाकीज़गी पर नजर करता है। इसलिए जब दाऊद आया तो उसने कहा मेरा ममसू यही है, इसको मसा कर, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को पाक करता था लेकिन उसका दिल भी पाक था। इसलिए खुदा ने कहा कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया, मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक है, जिसका दिल पाक होगा वही खुदा उनके दिल के मुताबिक होगा। इसलिए खुदा जिस्मानी नहीं, बातनी पाकीज़गी को चाहता है। और कलीसियाओं के अंदर बाज लोग सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी पर फोकस किए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, धोकर नए कपड़े पहनते हैं, शायद ऐसे दूसरे भी ना पहनते हो, जिस्मानी पाकीज़गी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर उनके गलाजत। यीशु मसीह ने फक्की फरीसियों को कहा जो बड़े बड़े लिबास कीमती पहनते थे, सफेद लिबास पहनते थे, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं, ये ऊपर से तो खूबसूरत मालूम होती हैं लेकिन इनके अंदर गलाजत भरी हुई, गुनाह की गलाजत। इसलिए खुदावंद के नजदीक आने वाले आज इस बात पर गौर करें कि वो किस पाकीज़गी के अंदर है। और आज हर शख्स ही नहा धोकर ही आता है, नहाने धोने से कुछ नहीं होगा जिस्मानी, अगर होगा तो अपने बातन को खुदा के कलाम से धोने से कुछ होगा, खुदा की सैंक्टिफिकेशन से। जब हम अपने आप को मुकद्दस करेंगे तो फिर हम हकीकी खुदा की पाकीज़गी, खुदा की होलीनेस में आएंगे। और योएल की किताब में लिखा है कि सयून में नरसिंगा फूंको, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। और फिर कहता है मुकद्दस मजमा फ्राहम करो। और फिर वो कहता है कि लोगों को जमा करो और उनको मुकद्दस करो। सयून में नरसिंगा फूंकने से मुराद है कि यरूशलेम की कौम, यहूदी इस्राएली जो यरूशलेम में आबाद थे, यहूदा की सल्तनत से
योएल नबी को कहा गया कि ये अपने आप को पाक करें, ये नापाक है, ये जो मुसीबतें इनके दरमियान है, जो कहत पड़ा हुआ है, जो टिड्डियां इनकी फसलें खा जाती हैं, जो बारिशें नहीं इन पर होती, ना पहली बारिश होती है ना पिछली बरसात इनके ऊपर होती है, ये इसलिए है क्योंकि नापाकियां इनके अंदर पाई जाती है। और कहा गया योएल नबी के जरिए से कि अपने आप को पाक करो, पाक करो, जमा हो जाओ, एक दिन खुदा के लिए मुकद्दस करो, एक दिन खुदा के लिए मुकद्दस करो, मखसूस करो, जैसे हमने संडे को, इतवार के दिन को खुदा के लिए मुकद्दस किया हुआ है। ये संडे खुदा का दिन है, ये मुकद्दस है क्योंकि ये खुदा के लिए हमने इसको डेडिकेट किया है कि हम इस दिन खुदा की, यहोवा की, यीशु मसीह की पाक रूह की हम उसकी इबादत करेंगे। तो योएल कहता है कि रोजा रखो, किसके लिए? खुदा के लिए। मुकद्दस दिन ठहराओ, मुकद्दस मजमा, यानी ऐसे लोग हों जो नापाक नहीं, ऐसे लोग जो नाराज नहीं, ऐसे लोग जमा हों जो पाक हों। जब वो दुआएं उठाएंगे तो मैं फिर उनकी दुआओं को सुनूंगा, जब वो दुआ उठाएंगे तो मैं उतर आऊंगा उनके पास, उनसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। और फिर मैं क्या करूंगा? मैं टिड्डियों को तुम्हारे दरमियान से दूर कर दूंगा, मैं कहत साली को दूर कर दूंगा, मी वक्त पर बरसेगा तुम्हारे मुल्क पर, मैं पहली और पिछली बरसात को बरसाऊंगा, तुम्हारे गल्ले भर जाएंगे अफराद से, तुम्हारे हौजों में नई मैं और तेल जो है वो भरा हुआ होगा, और जो हासिल तुम्हारा जाया हुआ है पिछले दौर में, पिछली फसलों में टिड्डियां खा गई, मैं वो भी तुम्हें वापस लौटाऊंगा जब तुम मुकद्दस होकर, पाक होकर, सैंटिफाई होकर मेरी हजूरी में जमा होगे, तो फिर बरकतें मैं तुम्हें दूंगा। जहां पर नापाकियां होंगी वहां पर कहती होंगे, जहां पर खुदा से दूरी होगी, नापाकियां, गुनाह, बदकारियां, झूठ, जिनाकारियां, जुल्म, गालियां गलोच, मां बाप की नाफरमानियां, वहां पर घरों में कहती होंगी। जितने मर्जी आप कलीसिया में चले जाए, जितने मर्जी दिखा दें, हम तो बड़े जोश से कर लें, जी मैं बहुत पाक हूं, मैं खुदा जानता है कि तू पाक नहीं, ना पाक है, क्योंकि गुनाह तेरे अंदर बसा हुआ है। इसलिए घरों में बरकतें नहीं होती। खुदा की कुर्बत में जिंदगी बसर करना शुरू करें, खुदा की पाकीज़गी के अंदर, तो फिर वक्त पर मी बरसेगा और कहत जिंदगियों में नहीं होगा। जहां भी गुनाह होगा वहां पर कहत उन घरानों में पड़ जाती। और खुदा चाहता है कि मुकद्दस सैंटिफिकेशन जो लोग उस प्रोसेस से गुजरते हैं, उन्हीं पर मैं अपने आप को क्या करता हूं? जाहिर करता हूं। और कलीसिया के लिए पौलुस रसूल इब्रानियों के खत में उसके 10वें बाब में यह फरमाता है, पसाओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ, और दिल पर इल्जाम के लिए दिलों पर छींटे लेकर और अपने बदन को साफ पानी से धलवा कर खुदा के पास आए हैं। पौलुस रसूल चूंकि शरीयत का आलिम था, मुअल्लिम था, टीचर था, फरीसी था, और जब यीशु मसीह में आ गया तो वो शरीयत से जो है पाक रूह के जरिया से वो बोलता है कि कलीसियाओं को आज क्या करना चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको बताया, सुर्ख बचिया के पानियों के साथ गुनाहों की नापाकियों को दूर किया जाता है। जो उनसे हर रोज गुनाह सरजद हो जाते थे, वो काहिनों के पास आते थे, और काहिन क्या करते थे? उन पर सुर्ख बचिया की राख का
پانی ڈالتے تھے پاک کرتے تھے. اور یہاں پر جو ٹرمنالوجی ہے وہ وہی سینس میں پلوس کیا ہے لے رہا ہے. اس پر غور کرنا ہے. یہاں پر 4 چیزیں ہیں. پس آؤ ہم, وہ کلیسیا سے کہہ رہا ہے, عبرانیوں کی کلیسیا سے, آج آپ سے مجھ سے, آج کی کلیسیوں سے مخاطب ہے. پس آؤ ہم سچے دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ. پہلے بات ہے سچا دل اور دوسرا ہے پورے ایمان کے ساتھ. تیسری بات کیا ہے؟ دل پر الزام کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر. یعنی جو تیسری بات ہے وہ دلوں پر چھینٹے لے کر, اور چوتھی بات جو ہے اپنے بدنوں کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلے جاؤ. یہ سینٹیفیکیشن کلیسیاؤں کے لیے پالوس رسول جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح کلیسیا آ سکتی ہے خدا کے پاس سچے دل کے ساتھ, پورے ایمان کے ساتھ, اور دلوں پر چھینٹیں لے کر اور اپنے بدنوں کو صاف پانی سے دھلوا کر. تو یہ پالوس رسول کلیسیا کے لیے پاکیزگی کا عمل بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کلیسیا میں خدا کے پاس آنا چاہتا ہے تو اس کا دل سچا ہونا چاہیے, اس کا ایمان پورا ہونا چاہیے, اس کے دلوں پر چھینٹے ہونے چاہیے, اور وہ اپنے بدن کو پانی سے, صاف پانی سے کیا کرے؟ دھوئے. اور یہ جو بات ہے جب پالوس رسول کہتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں کہتا ہے کہ بھائیو تمہیں جو ہے یسوع مسیح کے خون کے سبب سے نئی اور زندہ راہ کے ذریعے سے پاک ترین مقام میں جانے کی دلیری تم رکھتے ہو. تو اس سے مراد کیا ہے کہ یسوع مسیح کا خون جس نے تمہیں پاک کر دیا ہے, اب تم پاک ترین مقام میں جا کر خدا کی حضوری میں کھڑے ہو سکتے ہو. وہ سرخ بچیا کے راک کے پانی سے اپنے آپ کو پاک کرتے تھے, اور پالوس رسول اسی تشبیہن کو, اسی کو لیتے ہوئے کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا. وہ تو پاک ترین مقام میں جا نہیں سکتے تھے, اور وہ بھی کاہن جاتے تھے پاک مقام میں. پاک ترین مقام میں ایک سال میں ایک دن, یوم کفارہ کے دن سردار کاہن جاتا تھا. پالوس کہتا ہے کہ ہمیں جو یسوع مسیح کے خون سے دھل جانے کے وسیلہ سے جو اب ہمیں دلیری ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاک ترین مقام میں ہر روز کھڑے ہو کر اس سے دعا کر سکتے. وہ پاکیزگی ہمیں مل گئی ہے. اور نئے عہد نامے میں لکھا ہے, پالوس رسول اپنے خطوں میں لکھتا ہے کہ اس نے ایک ہی بار ہمیں دھو کر, ایک ہی بار اپنا خون بہا کر, اپنے خون سے دھو کر اس نے ہمیں پاک کر دیا ہے, صاف کر دیا ہے, بے عیب کر دیا ہے اور بے الزام کر دیا ہے. اس لیے پس آؤ ہم سچے دل, ایک ایسا دل جو صرف یسوع کے لیے دھڑکتا ہو, ایک ایسا دل جو دنیا میں اور خدا میں بٹا نہ ہو. داؤد کہتا ہے کہ مجھے انڈیوائیڈڈ ہارٹ عطا کر, مجھے ایک ایسا دل دے جو بٹا ہوا نہ ہو بلکہ خدا تیری ہی پرستش کرتا ہو, صرف تیرے لیے ہی دھڑکتا ہو, انڈیوائیڈڈ نہیں, ڈبل مائنڈڈ نہیں. ایسا دل, ایسا سچا دل جس میں صرف ایک ہی ہو, جس میں دھڑکن ایک ہی گونجتی ہو, ایک ہی دھڑکن کی آواز ہو, اور وہ ہو یسوع یسوع یسوع. اور پورے ایمان کے ساتھ, پورا ایمان, ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو, ایسا ایمان جس میں پورا توکل یہوہ باپ پر ہو, یہوہ بیٹے پر, یہوہ پاک روح پر. ایک ایسا ایمان, اور ایمان کی کمی ہے پھر آپ خدا کی حضوری میں نہیں چل سکتے. یسوع مسیح نے کہا ہے بے اعتقادو, اے کم اعتقادو, اپنے شاگردوں کو ڈانٹا.
तो इत्तेकाद क्या होना चाहिए? ईमान, भरोसा उस पर पूरा होना चाहिए। मौत भी आपके सामने खड़ी हो, तलवार भी आपके सामने खड़ी हो, मुसीबतों से, भूख से, सफरिंग के अंदर एज़ारसानियों से भी आप गुजरते हो, आपका ईमान डोलने ना पाए, आपका पूरा ईमान हो कि मेरा यीशु मेरे साथ है और वो मुझे बचाएगा। पूरा ईमान जिसमें शक नहीं, जो ये ना कहते ये मुसीबतें क्यों आ गई, मैं तो खुदा के साथ चलता। ऐसा पूरा ईमान हो जो मुसीबतों में पलूस की तरह खुश हो और हम्द स्ताइश के गीत गाता हो, वो कहता हुआ हो ये मुसीबतें तो इसलिए हैं ताकि मैं मसीह में और ज्यादा मजबूत हो जाऊं। और दूसरा, दिल पर इल्जाम। जिस शख्स की जिंदगी में गुनाह होगा उसका दिल उसको इल्जाम देगा कि तू गुनहगार है, तू बदकार है, तू जिनाकार है, तू शराबी है, तू बदतमीज है, तू गालियां निकालता है, तू शेखी मारता है। उसका दिल उसको इल्जाम देगा। तो तेरी जिंदगी में गुनाह है, और लिखा है कि इंसान का ज़मीर उसको क्या करता है? मलामत करता है। जब कोई गलती हो जाए ना, तो इंसान का ज़मीर यानी उसका दिल उसको मलामत करता है, इल्ज़ाम लगाता है कि तूने ये क्यों किया। और लिखा है कि उस दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे ले ले। किसकी छींटे ले ले? यीशु मसीह के खून की, जो दिलों को पाक करता है, जो धो डालता है। उसने हमें अपने खून से बेइल्जाम कर दिया है। अगर कहीं गलती हो जाए, अगर कोई खता हो जाए, यीशु मसीह के पास आ जाएं और उसके खून से अपने दिलों को धोकर यीशु मसीह की इबादत करें। और चौथी बात, अपने बदनों को क्या करना है? साफ पानी से धोना है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि पानियों से वो अपने आप को क्या करते थे? पाक करते थे। काहिन भी अपने आप को पाक करते थे और बनी इस्राएल भी। और क्या करते थे? सुर्ख बछिया की राख के पानी से। और जब एक काहिन खैमा इज्तिमा के अंदर खिदमत करता था और कुर्बान गाह पर कुर्बानियां चढ़ाता था, तो पैटर्न यह था कि खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर कुर्बान गाह थी जिस पर वो कुर्बानियां गुजरानते थे। उससे आगे सहन था और उस सहन के अंदर पानी का हौज था। उससे आगे पाक मुकाम था, फिर पाक तरीन का। जब एक काहिन जो था वो कुर्बानी चढ़ाता और उसको पाक मकाम में जाना होता था, तो वो सहन में जाते हुए पानी के हौज, जिसको पीतल का हौज भी कहते हैं, उसमें क्या करता था? अपने हाथ पांव धोता था कि जो वो कुर्बानी चढ़ा कर आया है या रास्ते में सहन के अंदर से कोई डस्ट वगैरह उसके हाथ पांव पर लगी है, उसके हाथ वहाँ पर जो हैं वो गंदे हुए हैं, तो वो अपने हाथों को पानियों से, हौज के पानियों से धोता था और फिर आगे जाता था। तो इसका हौज जो है पानी उसमें था, वो पानियों से अपने आप को साफ करता था। और दूसरा क्या था? सुर्ख बछिया की राख से अपनी नापाकियों को वो सब क्या करते थे? वो पाक करते थे, सैंटिफाई करते थे, अपने आप को मुकद्दस करते थे। तो फिर वो क्या होते थे? वो पाक होते थे। तो उसी वे में पौलुस रसूल जो मुकाशवा बयान करता है कि अपने बदनों को धो लो, अपने बदनों को धोना है हमें खुदावंद यीशु मसीह के खून से। और दूसरा, जब वो कुर्बानी चढ़ाकर हौज में अपने हाथों को धोते थे, तो हौज का पानी जो है ये कलाम खुदा को जाहिर करता है कि अपने आप को खुदा के कलाम के पानी से धोकर खुदा के पास चले आओ। खुदा ने हमें 3 चीजें पाक करने के लिए दी हैं। 3 चीजों से हम पाक होते हैं। एक, खुदा के बेटे का खून हमें पाक करता है, यीशु मसीह का ब्लड हमें पाक करता है। खुदा का कलाम हमें पाक करता है। और तीसरा, पाक रूह हमें पाक करता है। और पहला कुरिन्थियों में पौलुस रसूल बयान करता है
करंथियों की कलीसिया को कहता है, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से पाक और रास्तबाज ठहरा दिए गए। तुम हमारे यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से, यानी पाक रूह से तुम पाक कर दिए गए हो और रास्तबाज ठहरा दिए गए हो। पाक कर दिए गए हो, सैंक्टिफाइड कर दिए गए हो, तुम पाक कर दिए गए हो, तुम मुकद्दस कर दिए गए हो और अब तुम होली हो। सच्चे दिल से, पूरे ईमान से दिलों पर यीशु मसीह के खून की छींटे लेते हुए अपने बदन को खुदा के कलाम के पानी से धोना है तो हमेशा खुदा की हजूरी में इबादत कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं। झूठी तसल्ली नहीं कि अपने आप को बस जिस्मानी तौर पर पाक करना। खुदा जिस्मानी पाकीज़गी से ज्यादा चाहता है बातन की पाकीज़गी। हमारी रूहें रास्तबाजी में हो, हमारी रूहें सैंटिफिकेशन में हो, खुदावंद यीशु मसीह के खून से पाक की गई हो, कलाम से पाक होती हो और खुदा के पाक रूह से। खुदा का खून हमें रास्तबाज ठहरा देता है, पाक ठहरा देता है। कामिल पाकीज़गी किसके जरिए आती है? कामिल पाकीज़गी खुदा के कलाम के जरिए आती है। इसलिए हम कलाम को सुनते चले जाते हैं। लिखा है कि खुदा का कलाम हमें दर्जा बर दर्जा खुदा की सूरत पर ढालता चला जाता है, यानी खुदा की पाकीज़गी में कामिल करता चला जाता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि पाकीज़गी कितनी है, कितनी अहम है। खुदा को कौन देखेंगे? जो पाक दिल है। मुबारक मादी क्या है? मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि खुदा को वो इसलिए अपने दिलों में कभी बुराई, कभी गुनाह, कभी खता को अंदर आने नहीं देना। और मुकाशवा की किताब में यूहन्ना को एक बहुत बड़ी जमात दिखाई, 7वें बाब मुकाशवा, आप उसमें पढ़े, जिन्होंने सफेद जामे पहने हुए थे। एक फरिश्ते ने कहा, क्या यूहन्ना ये कौन है? यूहन्ना कहता, मैं नहीं जानता, ऐ खुदा तू ही जानता है। तो उस फरिश्ते ने कहा, ये वो हैं जिन्होंने अपने जामों को बर्रा के खून से धोकर साफ कर लिया है, सफेद कर लिया है। ये बड़ी मुसीबत में से होकर आए हैं, इसलिए ये खुदा के तख्त के सामने है, दिन रात उसकी इबादत करते हैं। मुकद्दस लोग इबादत करेंगे, वो लोग, वो जिंदगियां जिन्होंने अपने जामे यीशु मसीह के बर्रा के खून से धो रखी। और एंड में मुकाशवा में लिखा है, मुबारक हैं वो जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोए हुए हैं, उन्हीं को जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार दिया जाएगा। जिनके जामे बर्रा के खून से धुले होंगे वही जिंदगी के दरख्त के पास आएंगे, क्योंकि वो मुकद्दस हैं, वो पाक है। आदम को मना कर दिया गया कि वो जिंदगी के दरख्त में से नहीं खा सकता। क्यों? गुनाह की वजह से आउट कर दिया गया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि हम जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से, यीशु मसीह के खून से धो रखे हैं, खुदा उनको अलाउ करेगा कि आओ जिंदगी के दरख्त में से खाओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। लिखा है कि वो ही यरूशलेम के दरवाजों में दाखिल होंगे और खुदा के साथ हमेशा बादशाही करेंगे। मगर कुत्ते, जादूगर, झूठी बात का पसंद करने वाला, उघड़ने वाला, नाफरमान, हरामकार, बुतप्रस्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। कुत्तों से मुराद डॉग्स नहीं है, जानवर। कुत्तों से मुराद है नापाक लोग, बदकार, गुनहगार, जिनकी जिंदगियों में गुनाह की निजासत है, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो इसलिए हमें पाकीज़गी में, सैंटिफिकेशन, हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी होनी चाहिए। हम पाक ठहरा दिए गए हैं, यीशु मसीह के खून से रास्तबाज हो गए हैं, लेकिन कामिल
پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کلام کے پانی سے ہر روز اپنے آپ کو دھونا ہے. جب دھلتے چلے جائیں گے تو کامل ہوں گے, پاک ہو جائیں گے, ہم مقدس ہو جائیں خدا کی مانند. جب ہم پاک بن جائیں گے تو پھر یسوع مسیح ہمیں لینے کو آئے گا. جب کلیسیا میں کوئی جھوری نہیں ہوگی, جب کلیسیا نے چمکدار لباس پہن لیا ہوگا, تو لکھا ہے کہ اس کے مہین کتانی, تو لکھا ہے کہ اس سے مراد مقدسوں کے راست بازی کے کام ہیں. یعنی جب کلیسیا کامل ہوگی تو خداوند یسوع مسیح اس کو لینے کے لیے آ جائے گا. خداوند آپ کو برکت دے.